Hello and very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start a new lesson which name is A House is Not a Home. Actually, there is a difference between house and home. House means every building where we can live, but home is a place where our memories live with us, where we grow, we enjoy our childhood, our teenage, and our adulthood. So the place where we the place the the place which has these things, that is our home. But every building where we can live, that is the house. So this story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. How does the author overcome his problem? We have to find out in this chapter. So let us start. My first year of high school left awkward after having leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me. It felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. क्या होता है कि हाई स्कूल का पहला साल था और मैं बड़ा ही ऑकवर्ड फील कर रहा था। उसका कारण ये था कि जूनियर हाई स्कूल छोड़ने के बाद में जहाँ मैं अपनी क्लास का हेड हुआ करता था, सीनियरिटी में जब मैं अपग्रेड में पहुँचा तो मैं उसको झेल नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पर एज अ फ्रेशमैन बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि स्कूल पुराने स्कूल से लगभग 2 गुना बड़ा था। और सबसे बुरी चीज़ ये थी कि मेरे जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थे वो डिफरेंट हाई स्कूल्स में चले गए थे और मैं बिल्कुल आइसोलेट हो गया था। आइसोलेट का मतलब होता है दूसरों से अलग हो जाना। I miss my old teachers so much that I would go back and visit them. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. मैं अपने पुराने टीचर्स को इतना याद करता था कि टाइम टू टाइम मैं उनके पास वापस जाता था। वो मुझे इनकरेज करते थे कि स्कूल की एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व हो जाऊं और नए लोगों से मिलूं। उन्होंने मुझे बताया कि नए माहौल में जाने के बाद, नए लोगों के बीच जाने के बाद में थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब मैं उनके बीच में एडजस्ट कर लूँगा तो हो सकता है कि मैं अपने पुराने वाला जो स्कूल है उसको कम मिस करने लगूँ। और उन्होंने मुझसे वादा किया कि जब भी ऐसा होगा तो उसका स्वागत है, यानी कि मेरा स्वागत है, और मैं टाइम टू टाइम उनको आकर के विज़िट कर सकता हूँ। वो किस वजह से ये सब कह रहे थे मैं इस साइकोलॉजी को समझ रहा था, लेकिन फिर भी इस बात में मुझे थोड़ा सा आराम मिला। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. It was a cold and windy fall day, and we had a fire going in our place. As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. क्या होता है कि एक संडे आफ्टरनून के ये ज़्यादा समय नहीं बीता था जब मैंने हाई स्कूल शुरू किया था, तो मैं अपने घर में बैठा हुआ था डाइनिंग रूम में और वहाँ बैठ करके अपना होमवर्क कर रहा था। उस दिन बड़ी ठंड थी, हवाएं बड़ी तेज़ चल रही थी, तो जो फायर प्लेस था वहाँ पर आग जलाई हुई थी। और यूजुअल जैसा होता है, मेरी जो रेड रंग की टैबी कैट थी वो मेरे पेपर के ऊपर लेटी हुई थी और वो लाउडली परिंग कर रही थी, और ओकेजनली पेन जो था उसको अपने पंजे से खेल रही थी एंटरटेनमेंट के लिए। She was never far from me. I rescued her when she was a kitten, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. वो मुझसे कभी दूर नहीं रही थी, क्योंकि जब वो एक किटन थी तब मैंने उसको बचाया था, और किसी तरीके से वो ये भी जानती थी कि मैं वो अकेला आदमी था जो इस बात के लिए जिम्मेदार था, जो उसको एक अच्छी ज़िंदगी दे रहा था। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. Suddenly, I smelled something strange, and then I noticed it, smoke pouring in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see.
अब क्या हुआ कि जो मेरी मदर थी उन्होंने फायर को चालू रखा ताकि घर में एक नाइस एटमॉस्फेयर, वार्म एटमॉस्फेयर बना रहे, लेकिन सडनली मैंने कुछ अजीब से स्मेल किया और तब मैंने नोटिस किया कि धुआं जो था वो सीलिंग से बाहर आ रहा था, यानी कि घर में आग लग गई थी और जो धुआं था उसने पूरे रूम को इतनी जल्दी से भर दिया था कि हम कुछ देख ही नहीं पाए। ग्रोपिंग आवर वे टू द front door, we all ran out into the front yard. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. अब क्या होता है कि उस धुएं के बीच में बड़ी मुश्किल से हमने अपना फ्रंट डोर का रास्ता ढूंढा और हम जो सामने का यार्ड था वहाँ हम आ गए। और उस समय तक जब हम रास्ता ढूंढ रहे थे बाहर के साइड, पूरी जो छत थी वो आग की लपटों में घिर गई और ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रही थी। मैं अपने पड़ोसियों के पास गया, उनको कहा कि आप फायर डिपार्टमेंट को कॉल करें और इसी बीच मैंने देखा कि मेरी मदर वापस घर में भाग रही थी। माई मदर then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. I knew what she was after. My father had died when I was young and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. They were the only things that she had to remember him by. Still, I screamed at her, "Mom, no." मेरी मदर घर से बाहर निकल कर आई, मतलब भाग करके घर से बाहर निकल के आई और उनके हाथ में एक छोटा सा मेटल बॉक्स था जिसके अंदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। उन्होंने उस केस को लॉन पर जो है पटक दिया और एक पागलपन की स्टेट में वापस घर के अंदर चली गई भागते हुए। मुझे पता था कि वो किस चीज़ के पीछे जा रही है। एक्चुअल में क्या था कि मेरे जो फादर थे, मैं जब बहुत छोटा था तो उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी जो पिक्चर्स थी, उनके जो लेटर्स थे, वो ओनली मेमोरीज थी जिनके सहारे वो जी रही थी और वो नहीं चाहती थी कि वो आग के हवाले हो जाए। सो यही वो चीज़ें थी जो उनको सुकून देती थी और फिर भी मैं चिल्ला रहा था कि मम्मी नहीं। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand. My mother isn't there." मैं उनके पीछे भागने वाला था कि एक हाथ, बड़ा सा आदमी जिसको मैंने महसूस किया, उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। ये फायरमैन था। मैंने ये नोटिस नहीं किया था कि जो गली थी वो ऑलरेडी फायर ट्रक्स जो आग बुझाने के लिए आए थे उनसे भर गई थी। मैं अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहा था और मैं येल कर रहा था, यानी कि चिल्ला रहा था, तुम नहीं समझते हो, मेरी मदर अंदर है। He held on to me while other firefighters ran into the house. He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I would run. He was right. वो ये बात समझ रहा था, इसलिए उसने क्या किया कि मुझको पकड़ के रखा और दूसरे जो फायर फाइटर्स थे वो घर के अंदर भाग करके गए, क्योंकि वो जानता था कि मैं लॉजिकली काम नहीं कर रहा था और अगर वो मुझे जाने देता तो ये बात पक्की थी कि मैं सीधा भाग करके अंदर जाता। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर। उसने कहा कि ठीक है, वो उनको ले आएंगे। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आवर कार। Soon after that, a fireman emerged from a house with my mom in tow. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. I ran over and hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. अब क्या होता है कि मुझे कंबल डाल करके हमारी कार में बिठा दिया गया और थोड़ी देर के बाद में एक फायर फाइटर मेरी मदर को अंदर से लेकर के आया। जैसे मैंने उनको देखा मैं उनसे लिपट गया, उनको ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। अब मुझे पुरानी चीज़ें याद आने लगी, मैं उनसे झगड़ता था, उनसे नफ़रत करता था। इस समय पर वो सारी चीज़ें वैनिश हो गई थी, एकदम ख़त्म हो गई थी और मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शायद मैंने उनको अभी इस टाइम खो दिया होता। शी इज़ गोइंग टू बी ओके,
said the fireman. She just needed a little smoke. And then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. वो ठीक हो जाएगी, फायरमैन ने कहा. केवल जस्ट थोड़ा सा धुआं उनके अंदर चला गया है, वो ठीक हो जाएगी, डोंट वरी. और उसके बाद वो भाग कर के आग से लड़ने के लिए अंदर चला गया, जबकि मैं और मेरी मदर एकदम भौचक्के से वहाँ बैठे रहे. मुझे याद है कि मैंने अपने घर को जलता हुआ देखा और मैं सोच रहा था कि मैं इस बारे में कुछ कर नहीं सकता. So this is the first part of the lesson. The house is not a home, and what will happen after it? What will be the life of the writer, the narrator after this incident, and will he adjust himself in after this calamity, and will his life be normal after this great fall? We will come to know in our next part. Till then, thank you very much.